Okay, students, now we'll start with practical questions based on buyback of shares. Start करने से पहले last time हमने 5 rules लिखे थे. We'll try to recollect that. Number 1, shares buyback करना and equity share. This chapter deals with buyback of equity shares. If you want to buy back equity shares, those shares must be fully paid up. अगर shares partly paid up है, then you have to make a call and receive a call. That was the first one. Second, buyback can be made at par. It can be made also at premium and also at discount, students. Par, premium, discount मैंने आपको explain कर दिया था students over here. This was the first. Shares should be fully paid up. Partly paid up है तो make a call, receive a call. Equity shares can be bought back at par, premium और discount, students. Here we recorded. तो ये par, premium, discount कैसे कब find करते हैं? Face value जो share का है ना, उसको हमें कंपेयर करना है ऑफर प्राइस. ऑफर प्राइस मींस द प्राइस एट विच द कंपनी इज बाइंग बैक शेयर्स, उसको कहते हैं ऑफर प्राइस. ओके. थर्ड था, अगर आप प्रीमियम पे बाय बैक कर रहे हैं सो इट्स अ लॉस फॉर द कंपनी. यू मस्ट डेबिट सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट. अगर आपने डिस्काउंट पे बाय बैक किया है, इट्स अ गेन फॉर द कंपनी. क्रेडिट कैपिटल रिजर्व अकाउंट. Fourth step was equation. Face value of shares to be bought back is equal to. Fourth condition actually. Fourth condition was face value of equity shares to be bought back is equal to proceeds of fresh issue plus free reserve. Okay. For fresh issue किसका होना चाहिए? If you want to record that amount in this equation ना, that fresh issue should be of preference shares or debentures. Fresh issue या तो preference shares का या debentures का होना चाहिए. If in the question fresh issue is given for equity shares, please don't record the amount over here. It will be recorded in journal entry but not in the equation. Proceeds का मतलब फिर मैंने बता दिया था. Face value 10, issue price 10, proceeds 10 होगा. Face value 10, shares are issued at 12, proceeds will be considered at rupees 10. Face value 10, issue price 9, proceeds 9 ही माना जाएगा. Last, जो whatever amount we utilize from free reserve in this equation must be transferred to capital redemption reserve, and this reserve can be utilized only for fully paid bonus shares. फिर free reserves हमने लिखा था. Free reserve means what? Reserves out of which dividend can be distributed. Example, general reserve, profit and loss, revenue reserve, dividend equalization reserve, investment fluctuation reserve, etc. Non-free reserve means out of which dividend cannot be distributed. Capital reserve, revaluation reserve, capital redemption reserve, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व एक्सेट्रा. देन वी रिकॉर्डेड दीज एंट्रीज, स्टूडेंट्स 1 से लेके 10 तक हमने एंट्रीज रिकॉर्ड की थी. ओके. एंड देन आई डिस्कस के देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पॉसिबल इन दिस चैप्टर. एक कैसा स्टूडेंट्स कि ओवर देयर दे विल स्पेसिफाई कि हाउ मेनी शेयर्स वी हैव टू बाय बैक, एंड सेकंड टाइप हियर दे विल आस्क अस टू डिसाइड हाउ मेनी शेयर्स to be bought back by the company. First type में question will specify us कि these many shares are to be bought back, and we'll start with directly journal entries, draw balance sheet if it is asked. But second type में ना, you can't start with journal entries directly. In that case आपको कुछ working करना पड़ता है. Just working, last time हमने लिखा था, ये working करना पड़ेगा students आपको. Decide how many shares to be bought back and then we'll record journal entries. Today students, we'll start with the first type of this question. Okay. Over there they will give us, वो लोग स्पेसिफाई करेंगे कि हाउ मेनी शेयर्स कंपनी विल बाय बैक. सो टुडे वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टाइप ऑफ द क्वेश्चन स्टूडेंट. सेकंड टाइप जब इसका कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके हो जाएंगे ना, देन सेकंड टाइप हम लोग डिस्कस करेंगे, एंड वंस अगेन ये कैलकुलेशन कैसे होता है. ओके. So we'll start with the first type of questions where they will specify, it will be stated in adjustment कि how many equity shares we have to buy back. So we'll start with question number 1 students. Number 1. Following is the balance sheet of Sun Limited as on 31st March 2015. Share capital 60,000 equity shares of rupees 10 each, rupees 8 paid up. Students, equity share का face value balance sheet में 10 है, but paid up value 8 है. It indicates that shares are partly paid up. Equity shares क्या है? Partly paid up है. Keep this in mind. Then 10% preference shares of 100 each paid up. Security premium is a reserve, capital reserve, general reserve, profit and loss account, trade payable. Next, sundry asset, cash at bank. Company took all necessary steps to make equity shares eligible for buyback. Company decided to issue 1200 preference shares at par in order to buy back 20% equity capital. So students clearly mention किया है कितना buy back करना है. In order to buy back 20% equity capital of the company. New issue was fully subscribed.
Company also issued 1010% debentures of 100 each fully paid. After the issue of shares and debentures, company bought back 20% equity capital from the open market. Pass journal entries and prepare balance sheet of the company. They have asked entries and balance sheet. Once again, we have first type here, students. First type means what? Over here they have specified how many shares to be bought back. Second line में लिखा है below balance sheet. Company decided to issue so and so shares in order to buy back 20% of equity capital. कितना हमको buy back करना है? 20%. It's not an assumption. They have specified clearly, students. But students, before starting with buyback, shares must be condition number 1. Equity shares must be fully paid up. Balance sheet देखो. 60,000 equity shares of 10 each, 8 paid up. So 2 rupees अभी भी balance है. So when shares are partly paid up, we first start with make a call and receive a call, students. So I am recording entry for make a call. Journal entry will be equity share final call account debit to equity share capital account credit. Students, number of shares balance sheet में देखो कितने हैं. Number of shares in balance sheet it is 60,000. Okay, and 2 rupees is outstanding. So 60,000 into 2 will do. So amount will be 1,20,000. Then we record narration. अच्छा, जब नोट्स लिखा था तो मैंने ऐसा हेडिंग दिया था, मेक अ कॉल, रिसीव अ कॉल, फ्रेश इशू. एन एग्जाम डोंट राइट दो सच हेडिंग, स्टूडेंट्स. इंस्टेड ऑफ दैट हम लोग नरेशंस लिखते हैं, है ना, जर्नल में. सो बीन फाइनल कॉल मेड ऑन 60,000 equity shares at rupees 2 per share. Okay, we never show the calculation, students. हम लोग कैलसी यूज कर लिया हमने. 60,000 into 2, so we got 1,20,000. यहाँ पे लिखना नहीं 60,000 into 2. प्रीवियस चैप्टर में इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन मैंने बहुत जगह लिखा है, बट इफ यू नोटिस मैंने सब पेंसिल से लिखा था. पेंसिल से लिखा था मतलब व्हाट डज इट मीन, जस्ट आपको समझाने के लिए हाउ वी गेट द आंसर. एग्जाम में भी रिकॉर्ड नरेशन, स्टूडेंट्स, कैलकुलेशन नहीं बताते हैं जर्नल में. ओके, कैलसी यूज करो, रिकॉर्ड द आंसर. So why make a call? Because equity shares are partly paid up. अगर shares partly paid up है तो पहले start करने का make a call से. Then we write receive a call. तो उसमें receive में मतलब कंपनी को पैसा आ जाएगा हाथ में. So bank account debit to equity share, मैंने short में SH लिख दिया. Final call credit to equity share final call credit. कितना, जितना आपने कॉल किया था 1,20,000. ये एंट्री आपको लास्ट सेम में भी होती थी इन केस ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. अगर प्रेफरेंस शेयर्स पार्टली पेड अप होते थे तो सेम टू एंट्रीज यूज टू रिकॉर्ड, बट इक्विटी शेयर की जगह वहां प्रेफरेंस शेयर लिखते थे. ओके, सो दिस विल बी बीन कॉल्स रिसीव्ड ऑन 60,000 equity shares at rupees 2 per share. So 60,000 into 2 is 1,20,000. That's what we have recorded here, 1,20,000. जितना कॉल किया उतना रिसीव हो गया. ये इश्यू ऑफ शेयर्स में भी आपने पढ़ा होगा. स्टूडेंट्स, एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, उसके बाद कॉल होता था. तो कॉल में आपने शायद ऐसा सीखा हो, आस्क रिसीव. पहले पैसा मांगो, देन यू विल रिसीव द मनी. आस्क रिसीव, दैट्स व्हाट इट इज. ओके, so whenever shares are partly paid up, equity shares की बात कर रहे हैं, because we are dealing with buyback of equity shares. If shares are partly paid up, then it is compulsory first record make a call and receive a call. और सारे shares पे करना है, जितने shares बैलेंस शीट में equity shares दिए ना, सब पे हमको call make a call भी करना है, उनसे मांगना भी है, and then we have to receive that money also. Okay, then after this, अभी shares आपका fully paid up हो गया students, then we draw an equation. ये last sem में भी शायद आप लोग draw करते होंगे definitely students. इक्वेशन क्या होता था, अभी भी स्टेप नंबर 4, कंडीशन नंबर 4 में हमने लिखा था, फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स टू बी बॉट बैक इज इक्वल टू प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इश्यू प्लस फ्री रिजर्व. एक्चुअली करना चाहिए सेपरेट वर्किंग नोट में स्टूडेंट्स, बट आपको समझाने के लिए मैं जर्नल में ही लिख रहा हूँ. ओके, बट एक्चुअली शुड बी डन एज अ वर्किंग नोट सेपरेटली. फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स टू बी बॉट बैक,
कितने शेयर्स बाय बैक करने हैं? अगेन गो टू द क्वेश्चन सेकेंड लाइन, in order to buy back 20% equity capital. Students, total number of shares बैलेंस शीट में 60,000 है, तो उसका 20% निकाल लो पहले. 60,000 into 20%. So number of shares students आएगा 12,000. This is number students. ये 60,000 number of shares है into 20%. So answer is number. मुझे चाहिए face value. Face value per share कितना है? 10 students. So total amount will be 60,000 into 20%. 12,000 multiply by 10 face value 1,20,000. अच्छा स्टूडेंट्स, इसका और इसका कोई कनेक्शन नहीं है मेक अ कॉल और ये फेस वैल्यू का. इट्स अ कोइंसिडेंस के ये आंसर सब 1,20,000 ऐसा सेम लग रहा है आपको. प्लीज प्लीज देयर इज नो सच कनेक्शन. हाँ, कि मेक अ कॉल जितना है उतना ही बाय बैक करना है, ऐसा कुछ नहीं है स्टूडेंट्स. प्लीज हाँ, वो मेक अ कॉल रिसीव अ कॉल खत्म. इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस कि आपके ये आंसर सेम है. ये दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है. व्हाट दे हैव सेड सेकंड लाइन में कि आपको 20% इक्विटी शेयर्स बाय बैक करना है. टोटल नंबर ऑफ शेयर्स गिवन इन बैलेंस शीट इज 60,000. तो 60,000 को 20% से मल्टीप्लाई करो, नंबर ऑफ शेयर्स आएगा 12,000 और फेस वैल्यू पर शेयर कितना है? 10. सो 12,000 टू 10 इज 1,20,000. अगर 1,20,000 रुपीज के शेयर्स बाय बैक करने हैं तो फंड्स कहां से आएगा? यू हैव टू ऑप्शंस. दो जगह से पॉसिबल है, या तो फ्रेश इश्यू कर लो या फ्री रिजर्व, या कुछ फ्रेश इश्यू से या कुछ फ्री रिजर्व से. एनी कॉम्बिनेशन, आइदर ओनली फ्रेश इश्यू और ओनली फ्री रिजर्व, या पार्ट फ्रेश इश्यू पार्ट फ्री रिजर्व, कुछ भी हो सकता है. उसके लिए अगेन वंस अगेन क्वेश्चन देखो स्टूडेंट. कंपनी डिसाइडेड टू इशू 1200 प्रेफरेंस शेयर्स एट पार. 1200 प्रेफरेंस शेयर्स एट पार. सो यहाँ पे इशू किया है फ्रेश इशू 1200 प्रेफरेंस शेयर्स, और प्रेफरेंस शेयर्स का फेस वैल्यू बैलेंस शीट में देखो स्टूडेंट्स 100 है. सो 1200 इंटू 100 करेंगे तो फ्रेश इशू कितना हो जाएगा? 1,20,000. We need to buy back 1,20,000 वर्थ ऑफ इक्विटी शेयर. इतना पैसा हमको रीपे करना है. बाय बैक में मतलब रीपे करना है. रीपे करना है तो वी नीड फंड्स. फंड्स कहां से आएगा? या तो फ्रेश इशू या तो फ्री रिजर्व, या दोनों साथ में, थोड़ा यहां से थोड़ा यहां से, एनी कॉम्बिनेशन. ओके, नाउ दे से 1200 प्रेफरेंस शेयर्स आर इशूड एट पार. पार मतलब फेस वैल्यू. फेस वैल्यू प्रेफरेंस शेयर्स का बैलेंस शीट में दिया है 100. सो 1200 इंटू 100 1,20,000. मुझे रीपे करना है 1,20,000. मेरे इसी सोर्स से यहीं से 1,20,000 पूरा आ गया. सो दैट मीन्स फ्री रिजर्व पे लेने की जरूरत ही नहीं है. आई डोंट रिक्वायर ए सिंगल पेनी फ्रॉम फ्री रिजर्व. भूल जाओ, फ्री रिजर्व से कुछ नहीं लेना है. तो एंटायर अमाउंट वी कैन अरेंज इट फ्रॉम फ्रेश इश्यू इटसेल्फ. अच्छा, नोट्स में हमने लिखा था क्या इक्विटी शेयर्स बाय बैक कर रहे हैं तो फ्रेश इश्यू किसका होना चाहिए स्टूडेंट्स? या तो प्रेफरेंस शेयर्स या तो डिबेंचर्स. सो ये प्रेफरेंस शेयर्स का है ना, सो वी कैन रिकॉर्ड इट. If this is a fresh issue of equity shares, suppose 1200 equity shares आपने fresh issue किया, so you can't record the amount. फिर ये record नहीं कर सकते, ये zero रहेगा. फिर then you have to go to free reserve. अगर debentures नहीं दिया है तो you have to go to free reserves. Okay? So if fresh issue is of preference shares or debentures, you can record here. Okay, so done. So पहले हमने make a call किया, receive a call किया, shares fully paid up हो गए. Then we started with this equation. ये equation हमेशा working note में करना है. Now again वापस journal entries पे आ जाते हैं. Entry number 1 as per the notes, make a call. Entry number 2 as per the notes, receive a call. Third entry as per the notes, students, investment, sale of investment. वो compulsory. जैसा ये compulsory नहीं है. Why we recorded this entry? Because shares were partly paid up. Third entry is also not compulsory. Sale of investment, question में देखो, adjustment देखो, वहां पे कोई बोला है कि investment बेचा है. Just 4-5 लाइन का एक पैरा है below balance sheet. You can refer students. फर्स्ट लाइन में उन्होंने कहा है कि कंपनी टुक ऑल नेसेसरी स्टेप्स टू मेक इक्विटी शेयर्स एलिजिबल फॉर बाय बैक. देन कंपनी डिसाइडेड टू इशू सो एंड सो शेयर्स टू बाय बैक 20% इक्विटी कैपिटल. कंपनी ऑल्सो इशूड 1,000 10% डिबेंचर. आफ्टर इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर्स, कंपनी बॉट बैक शेयर्स फ्रॉम ओपन मार्केट. देयर इज नो सच सेंटेंस, there is no such adjustment regarding sale of investment. तो sale of investment नहीं है. So no need to record entry number 3. Entry number 4 as per the notes, fresh issue. Yes, we have fresh issue. अभी तो record किया. So we'll record the entry for fresh issue. Journal entry will be bank account debit. कौन सा शेयर इशू कर रहे हैं हम लोग? प्रेफरेंस शेयर. प्रेफरेंस शेयर का नाम है 10% प्रेफरेंस शेयर. बैलेंस शीट में आप देख सकते हो उसका नाम दिया है 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्रेडिट. और शेयर्स उन्होंने क्लियरली कहा था 1200 प्रेफरेंस शेयर्स आर इशूड एट पार. सेकेंड लाइन बिलो द बैलेंस शीट. तो ये 1,20,000 हम लोग यहाँ पे कॉपी कर लेंगे.
1,20,000 will copy here. Bank account debit to preference share capital 1,20,000. This is actually entry number 4 as per the notes which we have recorded in the last lecture, students. Okay? फिर इसके बाद फ्रेश इश्यू के बाद हम लोग देखते हैं कि बायबैक कैसे, फ्रेश इश्यू के बाद सी बायबैक इज एट पार, प्रीमियम और डिस्काउंट. अगेन गो टू द क्वेश्चन, सेकेंड लाइन, कंपनी डिसाइडेड टू इश्यू 1200 प्रेफरेंस शेयर्स एट पार. तो प्रेफरेंस शेयर से रिलेटेड था कि नया प्रेफरेंस शेयर जो इश्यू होगा वो पार पे होगा. आई एम टॉकिंग अबाउट बायबैक कैसे होगा स्टूडेंट्स. बायबैक कैसे करना है आपको, हाउ बायबैक विल बी मेड, दैट इज इंपॉर्टेंट, वो डिसाइड करना है हमको. ठीक है. सो बायबैक के लिए उन्होंने कुछ कहा है क्या, आगे पढ़ो. इन ऑर्डर टू बायबैक 20% इक्विटी कैपिटल ऑफ कंपनी. जस्ट उन्होंने कहा है कि यू हैव टू बाय बैक 20% इक्विटी कैपिटल ऑफ द कंपनी. पार पे करना है, प्रीमियम पे करना है कि डिस्काउंट पे करना है स्टूडेंट्स, नथिंग स्पेसिफाइड. दैट मीन्स बायबैक इज एट पार. इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड, उन्होंने कुछ कहा ही नहीं है बायबैक कैसे करना है. इट मीन्स buyback is at par. If nothing is specified, it means buyback is at par students, compulsory. ठीक है. तो यहाँ पे उन्होंने कुछ कहा नहीं है, तो entry number 5 as per the notes is not required. That was entry number 5 as per the notes. Then वो डिसाइड हो गया. फिर उसके बाद हम लोग डिसाइड क्या करते थे, अमाउंट पेएबल, वो एंट्री रिकॉर्ड करना कंपल्सरी. अमाउंट पेएबल का एंट्री होता है स्टूडेंट्स. अच्छा स्टूडेंट्स एक मिनट, फ्रेश इश्यू में और कुछ भी था, बाद में देखते हैं. इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट. ओके. आफ्टर फ्रेश इश्यू कम्स आइदर प्रीमियम ऑन बायबैक या डिस्काउंट ऑन बायबैक. वो नहीं था तो वो इग्नोर किया. देन कम्स अमाउंट पेएबल. हम लोग कितना बायबैक कर रहे हैं, 1,20,000. 1,20,000. ओके. नरेशन विल बी बीन अमाउंट पेएबल ऑन बायबैक. अच्छा, नोट्स में स्टूडेंट्स आपको एक बार दिखा दूं, यहां पे था प्रीमियम ऑन बायबैक या डिस्काउंट, तो ये तो नहीं है. ओके. ये नहीं था. एंट्री यहां पे था प्रीमियम ऑन बायबैक या डिस्काउंट. दिस इज नॉट गिवन. अमाउंट पेएबल, अभी अमाउंट पेएबल में देखो क्या लिखा, आइदर आई मस्ट रिकॉर्ड दिस एंट्री और दिस एंट्री. यहां पे प्रीमियम है, यहां पे डिस्काउंट है, बट स्टूडेंट्स बायबैक पार पे है. सो आई कांट राइट प्रीमियम, आई कांट राइट डिस्काउंट. सो जनरल एंट्री क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स. Equity share capital to equity shareholders. As I said, buyback is at par. There is no premium on buyback, no discount on buyback. आप कोई भी एंट्री यूज करो, दोनों में से कोई भी, मगर आप प्रीमियम भी नहीं लिख सकते, डिस्काउंट भी नहीं लिख सकते. सिंपल रीजन, बिकॉज बायबैक इज एट पार. तो एंट्री क्या हो जाएगी, इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स. दैट्स व्हाट आई रिकॉर्डेड, इक्विटी शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट एंड बीन अमाउंट पेएबल ऑन बायबैक. ये अमाउंट कहां से आया स्टूडेंट्स, पेंसिल से मैं ऐसा मार्क कर रहा हूं स्टूडेंट. दिस अमाउंट, ये 1,20,000 ना, ये 1,20,000 मैंने यहाँ पे कॉपी किया, 1,20,000 ऐसा मैंने स्टार मार्क कर दिया. दिस 1,20,000 फेस वैल्यू आई हैव रिकॉर्डेड हियर. ये 120 यहाँ से, क्योंकि स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, मेक अ कॉल भी सेम आ रहा है, फ्रेश इश्यू भी सेम आ रहा है, सब अमाउंट्स 1,20,000 बार बार आ रहे हैं, तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्वेश्चन में सारे अमाउंट सेम है तो कौन सा अमाउंट किधर जा रहा है. सो दिस मेक अ कॉल रिसीव अ कॉल 1,20,000 क्यों आया था, क्योंकि आपके 60,000 शेयर्स थे, वो पार्टली पेड अप थे 2 रुपीज, इसके लिए 60,000 इंटू 2 किया तो 1,20,000. मतलब इसका और इक्वेशन का कोई कनेक्शन नहीं है. इसके बाद मैंने इक्वेशन बनाया ना, तो इक्वेशन ऊपर से कोई भी कनेक्शन नहीं है उसका स्टूडेंट्स. ठीक है, वो भूल जाओ. हाँ, अभी इक्वेशन बना लिया, उसके बाद भी देखो 1,20,000 आ रहा है, तो अगेन स्टूडेंट्स कंफ्यूज होंगे, फिर 1,20,000 क्यों. ये पहला वाला 120 देखो यहाँ से आया, ये फ्रेश इश्यू. जस्ट फॉर योर रेफरेंस, दिस फ्रेश इश्यू मैंने यहाँ रिकॉर्ड किया, ये फ्रेश इश्यू यहाँ पे रिकॉर्ड किया. बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. ओके. और ये फेस वैल्यू आई रिकॉर्डेड हियर अमाउंट पेएबल का एंट्री में. ओके. सो इक्वेशन का ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल यहां पे गया,
एंड फेस वैल्यू ये इक्विटी शेयर कैपिटल में डेबिट हुआ. ओके, सो दिस वाज एंट्री नंबर 6 एज पर द नोट. स्टूडेंट्स ये एंट्री नंबर 6 है हमारे नोट्स के हिसाब से. नाउ एंट्री नंबर 7 एज पर द नोट. स्टूडेंट उसको हमने लिखा था अमाउंट पेड. पहले हमने अभी लिखा अमाउंट पेएबल, अब अमाउंट पे. अभी हम उनको पैसा पे करेंगे. सो जर्नल एंट्री सिंपल, अमाउंट पे करना है ना उनको. सो जर्नल एंट्री विल बी अमाउंट पेड का एंट्री. किसको पे करना है हमको? इक्विटी शेयर होल्डर्स को. सो जर्नल एंट्री विल बी इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट. पे करना है, सो कैश जा रहा है हमारे पास से. सो टू बैंक अकाउंट क्रेडिट. कितना? जो पेबल में अमाउंट लिखते हैं ना स्टूडेंट्स, ये शेयर होल्डर्स के सामने, ये शेयर होल्डर्स के सामने जो अमाउंट लिखा है दैट अमाउंट शुड बी कॉपीड हियर. क्योंकि अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, बार बार सारे अमाउंट्स आपको सेम लग रहे हैं. देखो जर्नल में हर जगह 1,20,000 आ रहा है, तो कंफ्यूज मत होना. सी दिस 1,20,000 ये जो है ना इक्विटी शेयर होल्डर्स वाला, ये मैंने यहाँ पे लिखा. स्टूडेंट्स आपके रेफरेंस के लिए ऐसा एरो बना रहा हूं, नो नीड. हाँ, जस्ट आपको बताने के लिए. दिस इक्विटी शेयर होल्डर्स, ये इक्विटी शेयर होल्डर्स है 1,20,000. दिस अमाउंट आई हैव यहाँ पे क्रेडिट किया था 1,20,000, ईयर आई डेबिटेड. सो दिस इज अमाउंट पेड. सो इसको लिखेंगे बीन amount paid on buyback. This was entry number 7 as per the notes. Entry number 8 क्या होता था? Transfer to capital redemption reserve. ऐसे ही हमने लिखा था Transfer to capital redemption reserve. ओके, वो कब आती है वो एंट्री स्टूडेंट्स? एज पर रूल नंबर 5. हमने स्टार्टिंग में जो 5 कंडीशन लिखे थे उसमें लास्ट वाला था एनी अमाउंट यूटिलाइज आउट ऑफ फ्री रिजर्व. रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में इसको आप डिविजिबल प्रॉफिट कहते थे. एनी अमाउंट यूटिलाइज आउट ऑफ फ्री रिजर्व मस्ट बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, है ना. तो इक्वेशन में कुछ हमने फ्री रिजर्व से यूज किया है, क्या है? नेल. कुछ भी यूज नहीं किया तो एंट्री नहीं आएगी. सो एंट्री नंबर 8 इज नॉट रिक्वायर्ड. ओके, once again students, shares partly paid up है तो हम पहले उनको fully paid up करना पड़ेगा. तो we did make a call, receive a call. ये करने के बाद मैंने इक्वेशन बनाया. ओके, कितने शेयर्स बाय बैक करना है? एडजस्टमेंट में लिखा है कि आपको 20% शेयर्स बाय बैक करना है. तो 60,000 टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है बैलेंस शीट में, उसको 20% से मल्टीप्लाई किया तो वी गॉट 12,000 शेयर्स टू बी बॉट बैक. फेस वैल्यू 10 है एक इक्विटी शेयर का. सो टोटल फेस वैल्यू टू बी बॉट बैक इज 1,20,000. 1,20,000 रीपे करना है तो आपके पास दो जगह हैं, दो रास्ते हैं जहां से आप फंड्स कलेक्ट कर सकते हैं, या तो फ्रेश इश्यू करके या फ्रॉम योर सेविंग्स. अब आ जाते हैं फ्रेश इश्यू. क्वेश्चन सेज दैट कंपनी इश्यूड 1,200 प्रेफरेंस शेयर्स एट पार. सो 1,200 प्रेफरेंस शेयर्स, पार मींस ₹100. फेस वैल्यू प्रेफरेंस शेयर का बैलेंस शीट में दिया 100. सो 1,200 into 100 इज 1,20,000. 120 मुझे चाहिए, 120 अरेंज हो गया तो फ्री रिजर्व्स के लिए मुझे जाने की जरूरत नहीं, सेविंग्स यूज करने की जरूरत नहीं. सो नील. देन आफ्टर दैट नेक्स्ट एंट्रीज फॉर फ्रेश इश्यू. बैंक टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, शेयर्स आर इशूड एट पार. ये 1,20,000 मैंने यहाँ पे कॉपी किया प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के अगेंस्ट में. नेक्स्ट इज देन वी विल डिसाइड कि वेदर बायबैक इज एट पार, प्रीमियम और डिस्काउंट. क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो कुछ मेंशन ही नहीं किया. उन्होंने जस्ट कहा कंपनी डिसाइडेड टू बाय बैक 20% इक्विटी कैपिटल. दैट मींस बायबैक इज एट पार. पार है तो प्रीमियम का और डिस्काउंट का एंट्री नहीं आएगा. सो इग्नोर एंट्री नंबर 5 एज पर द नोट्स. ये एंट्री नंबर 6 है एज पर द नोट्स. ये है क्या? अमाउंट पेएबल, इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर होल्डर. मैंने कोई प्रीमियम डिस्काउंट नहीं लिखा बिकॉज बायबैक इज एट पार. ये 1,20,000 कहां से आया? ये फेस वैल्यू आई कॉपीड हियर. एंट्री नंबर 6 then sorry 7, this is amount paid equity shareholders to bank. ये 1,20,000, this 1,20,000 I copied here. जितना क्रेडिट किया शेयर होल्डर्स को उतना ही डेबिट किया. लास्ट एंट्री नंबर 8 वो ट्रांसफर टू CRR. वो कब ट्रांसफर करते हैं? व्हेन वी यूटिलाइज सम अमाउंट फ्रॉम फ्री रिजर्व. कुछ भी यूटिलाइज नहीं किया तो वो एंट्री इज ऑल्सो नॉट रिक्वायर्ड. नंबर 9 और 10 भी हमने नोट्स में लिखा है, वो बोनस का एंट्री स्टूडेंट्स. इफ यू ट्राई टू रिकलेक्ट तो बोनस का तो एडजस्टमेंट दिया नहीं है तो जाने दो स्टूडेंट्स. बोनस नहीं दिया है तो उसके बारे में सोचो भी मत. अगर देता तो हम लोग रिकॉर्ड करते. नथिंग इज आस्क्ड रिगार्डिंग बोनस, नथिंग इज सेड रिगार्डिंग बोनस. तो ये हमारी जर्नल एंट्रीज, सॉरी एक जर्नल एंट्री बाकी रहेगी स्टूडेंट्स. आई एम सॉरी. अभी देखो एक एंट्री कौन सा बाकी है. गो टू द क्वेश्चन. Third line, new issue was fully subscribed. Company also issued 1,010% debentures of 100 each. Clearly mention किया है कंपनी ने ना डिबेंचर्स भी इशू किया है. तो जस्ट लाइक जैसा प्रेफरेंस शेयर इशू हुआ था ना, वैसा डिबेंचर्स भी इशू किया है.
बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स, कितना बोलोगे 10% डिबेंचर्स टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू 10%। अब पार पे किया, डिस्काउंट पे नथिंग सेड, दैट मींस एट पार 1000 debentures of rupees 100 each, 1000 debentures into 100, so it comes to 1 lakh. So bank account debit to 10% debentures 1 lakh being 1000 debentures issued at par, being 1000 debentures issued at par. So this was the last entry. ये एक एक्स्ट्रा एंट्री पूछा था. अच्छा स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन ऐसा अराइज होता है, ये भी एक तरह का फ्रेश इश्यू था ना, वी कैन रिकॉर्ड इट हियर ऑल्सो. ये बैंक, इसके नीचे हम लोग लिख सकते थे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, तो भी चलेगा. ओके, नाउ इफ इट्स अ फ्रेश इश्यू, कैन बी रिकॉर्ड इन हियर, कैन बी रिकॉर्डेड हियर. यस स्टूडेंट्स, मैंने कहा था फ्रेश इश्यू प्रेफरेंस शेयर्स का होना चाहिए और डिबेंचर्स का, बट मैंने क्यों नहीं लिखा आपको सिंपल रीजन बताऊं. मुझे चाहिए था 1,20,000, प्रेफरेंस शेयर से मुझे पूरा 1,20,000 आ गया, तो डिबेंचर्स का अमाउंट लिखने की जरूरत ही नहीं है इक्वेशन में. हाँ, अगर यहाँ कम पड़ता, सपोज ये 1 लाख होता, तो मैं डिबेंचर्स भी लिख देता यहाँ पे, बट मुझे 120 चाहिए. आई हैव टू रीपे बैक 1,20,000. आई हैव अरेंज 1,20,000 फ्रॉम फ्रेश इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. इसके लिए मैंने लिखा नहीं. आप चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं इसको, कोई फर्क नहीं पड़ता है स्टूडेंट्स. ओके, डजंट मेक्स एनी डिफरेंस. वो भी एक तरह से फ्रेश इश्यू ही है. ओके, नाउ दे हैव आस्क्ड बैलेंस शीट आल्सो स्टूडेंट्स. जैसा लास्ट चैप्टर में बैलेंस शीट बनाने से पहले हम लोग फर्स्ट थिंग फर्स्ट क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम लोग शेड्यूल बनाते हैं. इफ यू रिमेंबर, शेड्यूल बनाते हैं हम लोग, तो पहला शेड्यूल ही बना लेंगे, फिर उसके बाद आई विल डिस्कस हाउ टू मेक द पोस्टिंग्स. अच्छा, मैंने एक्सप्लेन भी किया है. बीट एनी चैप्टर स्टूडेंट्स, हमेशा ध्यान रखना, कोई भी चैप्टर हो, पहला शेड्यूल हम लिखते हैं नोट्स टू अकाउंट्स. पहला शेड्यूल हमेशा शेयर कैपिटल का ही बनाना. नंबर 1 शेयर कैपिटल. नेक्स्ट लाइन, सॉरी इट इज AU ऑथराइज्ड, नहीं दिया, एक लाइन छोड़ के इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप. ओके, देन आफ्टर दैट देखेंगे और कौन कौन सा हमको रिक्वायर्ड है. उसके लिए हम लोग क्या देखते थे, ओल्ड बैलेंस शीट में जाते थे, कंपनी का ओल्ड बैलेंस शीट, वहां पे देखते थे क्या क्या आइटम्स दिए. एक से ज्यादा आइटम है किसी हेड में, तो देन वी ड्रॉ द शेड्यूल. किसी हेड में मतलब आई विल एक्सप्लेन. वो बैलेंस शीट का कॉपी कहां गया, शेयर कैपिटल मैंने बनाया. रिजर्व देखो, ओल्ड बैलेंस शीट में सिक्योरिटी प्रीमियम भी रिजर्व है, कैपिटल रिजर्व भी है, जनरल रिजर्व भी है, P&L भी है. एक से ज्यादा रिजर्व है ना, सो बेटर विल ड्रॉ रिजर्व्स का भी शेड्यूल बना लेते हैं. सो नंबर 2 विल बी रिजर्व्स एंड सरप्लस. ये नंबर 2 हो जाएगा हमारा. रिजर्व्स एंड सरप्लस विल बी नंबर 2. ओके, तो शेयर कैपिटल हो गया, रिजर्व्स एंड सरप्लस हो गया. ओके, वापस ओल्ड बैलेंस शीट में आओ. P&L तक तो हम पढ़ चुके. ट्रेड पेबल एक ही आइटम दिया है, तो हम डायरेक्टली बैलेंस शीट में लिख लेंगे, नो नीड टू ड्रॉ शेड्यूल. एसेट साइड पे जाओ, सन्ड्री एसेट, कैश एट बैंक. अब वो सन्ड्री एसेट डेटर्स है कि फिक्स एसेट, आई डोंट नो, तो एक ही आइटम है, तो नो नीड टू ड्रॉ एनी शेड्यूल फॉर दैट. सो 2 शेड्यूल में हमारा काम हो जाएगा स्टूडेंट्स. ओके, सो नाउ वी स्टार्ट विद पोस्टिंग्स. पोस्टिंग्स कैसा करते थे, वी यूज्ड टू स्टार्ट विद द बैलेंस शीट गिवन इन द क्वेश्चन. उसका लाइबिलिटीज साइड फर्स्ट लेते थे. लाइबिलिटीज में देखो इक्विटी शेयर्स दिया है, इक्विटी शेयर कैपिटल 4,80,000 लाइबिलिटी है. लाइबिलिटीज हैव क्रेडिट बैलेंस, वापस क्रेडिट किया तो ऐड और डेबिट किया तो माइनस. इफ यू रिमेंबर प्रीवियस चैप्टर में हमने काफी बैलेंस शीट बनाए हैं. सो इक्विटी शेयर कैपिटल कैलसी पे लिया, स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट एंट्री टिल द लास्ट. हर एंट्री में इक्विटी शेयर कैपिटल ढूंढना है. फर्स्ट एंट्री इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट. एग्जाम में ऐसा कैंसिल नहीं करना, आपके रेफरेंस के लिए मैं करता हूं. क्रेडिट मींस ऐड, सो 6 लाख. इक्विटी शेयर कैपिटल ढूंढ रहे हैं, यहां पे नहीं है, यहां भी नहीं है. इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट माइनस 1,20,000. इक्विटी शेयर कैपिटल नो. फाइनल आंसर कितना है, 4,80,000. फेस वैल्यू इक्विटी शेयर का 10 है, सो नंबर ऑफ शेयर्स विल बी 48,000 स्टूडेंट्स. सो विल रिकॉर्ड इट हियर, 48,000 इशूड सब्सक्राइब ने 48,000 इक्विटी शेयर्स of ₹10.
सो अमाउंट वॉज 4,80,000, हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया था, 4,80,000 आया था. ओके, सो इक्विटी शेयर कैपिटल हो गया. अगेन गो टू द ओल्ड बैलेंस शीट. नेक्स्ट है प्रेफरेंस शेयर, 10% प्रेफरेंस शेयर 5 लाख. 10% प्रेफरेंस शेयर ढूंढो फर्स्ट एंट्री से. यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पे नहीं है. थर्ड एंट्री प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, लाइबिलिटी क्रेडिट किया तो आड, सो प्लस 1,20,000, 620 हो गया. आगे ढूंढो कहीं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, नो. फाइनल आंसर इज 6,20,000. इसका फेस वैल्यू 100 है, डिवाइड बाय 100 करो तो विल गेट नंबर ऑफ शेयर्स 6,200. 10% preference shares of rupees 100, amount will be 6,20,000. preference shares भी हो गया. अगेन गो टू द ओल्ड बैलेंस शीट. सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व होता है. सिक्योरिटीज प्रीमियम पहले कैलसी पे ले लेते हैं स्टूडेंट्स. कितना है? 1515. राइट फ्रॉम द फर्स्ट एंट्री टिल द लास्ट ढूंढो कहीं सिक्योरिटीज प्रीमियम है क्या. देखो यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है. ओवर हियर नो नो नो. तो स्टूडेंट्स नथिंग टू ऐड और सबट्रैक्ट, तो अमाउंट सेम रहेगा. सो विल राइट सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट. हाउ मच इट इज गिवन? सिक्योरिटीज प्रीमियम 15,000. नो चेंज बिकॉज नथिंग टू ऐड और सबट्रैक्ट. जितना है वो वापस सेम कॉपी कर लो. नेक्स्ट इज कैपिटल रिजर्व. कितना है स्टूडेंट्स? वो भी 15,000 है. स्टूडेंट्स अगेन फर्स्ट एंट्री से स्टार्ट करो, कहीं कैपिटल रिजर्व है क्या? लास्ट तक ढूंढो, आपको कहीं भी कैपिटल रिजर्व नहीं मिलेगा, तो कैपिटल रिजर्व भी सेम रहेगा. कैपिटल रिजर्व सेम 15,000, उसी को कॉपी कर लिया वापस. कैपिटल रिजर्व के बाद नेक्स्ट आइटम क्या है? जनरल रिजर्व. राइट फ्रॉम द फर्स्ट एंट्री ढूंढो, कहीं भी देखो जनरल रिजर्व नहीं है, तो रिकॉर्ड द सेम अमाउंट. जनरल रिजर्व भी रिजर्व्स इन सरप्लस में ही आएगा. जनरल रिजर्व हाउ मच इट इज गिवन? 60,000, 60. नेक्स्ट इज प्रॉफिट एंड लॉस. स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट एंट्री स्टूडेंट्स, लास्ट तक ढूंढो, देखो कहीं प्रॉफिट एंड लॉस नहीं है, सो प्रॉफिट एंड लॉस भी रिजर्व्स होता है. सो प्रॉफिट एंड लॉस यहां पे लिख लेंगे 50,000. नेक्स्ट इज ट्रेड पेएबल. फर्स्ट एंट्री से लास्ट तक ढूंढो स्टूडेंट्स, ट्रेड पेएबल नहीं है, तो जितना हमको ओल्ड बैलेंस शीट में दिया है सेम हम न्यू बैलेंस शीट में कॉपी कर लेंगे. व्हाई न्यू बैलेंस शीट? क्योंकि हमने उसका शेड्यूल बनाया ही नहीं है, एक ही आइटम ना ट्रेड पेएबल. ट्रेड पेएबल मींस करंट लाइबिलिटी एंड बिल्स पेएबल. सो आई रिकॉर्डेड 3 लाख विच इज गिवन इन बैलेंस शीट. ये सेम यहां पे कॉपी कर लिया. सन्ड्री एसेट. स्टूडेंट्स अभी सन्ड्री एसेट मुझे पता नहीं है वो है क्या. फिक्स एसेट है, करंट एसेट. आई जस्ट एज्यूम कि सपोज वो फिक्स एसेट है 12,20,000. मैंने ऐसा एज्यूम किया है स्टूडेंट, मुझे पता नहीं है वो क्या है. इट कैन बी करंट फिक्स, दोनों मिला के हो सकता है. आई डोंट नो स्टूडेंट्स, क्यों कुछ लिखा नहीं है वहां पे. सो आई जस्ट मेड एन अजम्पशन कि फिक्स एसेट 12,20,000 है. एंड इफ यू नोटिस यहाँ पे कोई फिक्स एसेट नहीं है स्टूडेंट्स. सो वॉट एवर इज गिवन इन ओल्ड बैलेंस शीट सेम आई विल कॉपी हियर. लास्ट बचा कैश एट बैंक. कैश एट बैंक कितना है? कैलसी पे ले लो पहले, इट इज 2 लाख. ओके, स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट एंट्री, स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट एंट्री टिल द लास्ट ढूंढो. यहां तक कैश बैंक का है. कैश बैंक इज एन एसेट. डेबिट किया तो ऐड, क्रेडिट किया तो सबट्रैक्ट. ओके, फर्स्ट एंट्री कैश बैंक है क्या? नहीं है स्टूडेंट्स, नहीं है. सेकेंड एंट्री कैश बैंक है, यस. डेबिट किया, एसेट डेबिट किया तो ऐड, सो प्लस 1,20,000 कैंसिल किया. अगेन डेबिट 1,20,000, सो अगेन ऐड 1,20,000. इक्विटी शेयर टू शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर्स टू बैंक. क्रेडिट किया सो माइनस 1,20,000. अगेन डेबिट किया मतलब ऐड, सो ऐड 1 लाख. सो फाइनल आंसर इज 4,20,000. कैश इन बैंक. कैश इन बैंक मीन स्टूडेंट्स कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. ये हमें आंसर आ गया 4,20,000. प्लस माइनस करना, इट इज 4,20,000, 420,000. ओके, सो इफ यू रेफर द ओल्ड बैलेंस शीट, हम सारे आइटम कवर कर चुके हैं, लाइबिलिटी भी एसेट भी. इसके बाद हम लोग क्या करते थे, वो चैप्टर में कैपिटल रिडक्शन अकाउंट चेक करते थे. नाउ डोंट चेक दैट स्टूडेंट्स. यहाँ पे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट नहीं है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट है. वो ऐसा कुछ चेक मत करना. वंस यू कंप्लीटेड विद ओल्ड बैलेंस शीट, प्लस माइनस हो गया. स्टार्ट विद एंट्रीज जहां पे कोई क्रॉस मार्क नहीं है, अभी तक कैंसिल नहीं किया. देखो कॉल अकाउंट डेबिट 1,20,000, कॉल अकाउंट क्रेडिट 1,20,000, जीरो भूल जाओ स्टूडेंट्स. ये बच गया, नहीं ये हो गया कैंसिल, सॉरी ये कैंसिल हो चुका है. और क्या बचा? दिस इक्विटी शेयर होल्डर्स क्रेडिट 1,20,000, इक्विटी शेयर होल्डर डेबिट 1,20,000. स्टूडेंट्स कैंसिल हो गया, क्रेडिट डेबिट कैंसिल्ड. बचा अभी 10% डिबेंचर. 10% डिबेंचर इज अ लॉन्ग टर्म बोरिंग्स. वो अमाउंट कितना है? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, नॉट लॉन्ग टर्म प्रोविजन.
इट इज लॉन्ग टर्म बोरिंग. सो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के सामने लिखेंगे इट इज 1 लाख. यहां मैं लिख देता हूं 10% डिबेंचर्स. सारी एंट्रीज अभी देखो स्टूडेंट, सारे अमाउंट्स अभी कैंसिल हो गए, सब पे क्रॉस मार्क है, सब पे मैंने पेंसिल से क्रॉस मार्क किया है. सो ऑल ट्रांजैक्शंस कवर्ड. इसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, हम अपना शेड्यूल क्लोज कर लेते हैं. जो भी 2 वर्किंग नोट हमने बनाए ना, 4,80,000 प्लस 6,20,000, आंसर इज 11 लाख. शेयर कैपिटल का टोटल इज 11 लाख. देन 15, 15, 30, 90, 90 प्लस 50, 1,40,000 इज रिजर्व्स इन सरप्लस. सो बैलेंस शीट में आ जाओ. शेयर कैपिटल 11 लाख. सो अगेन शेयर कैपिटल नोट नंबर 1 11 लाख. रिजर्व्स 1,40,000. नोट नंबर 2 रिजर्व्स 1,40,000. 11 लाख प्लस 1,40,000 आउटर कॉलम 12,40,000. लॉन्ग टर्म प्रोविजन नहीं है, सो 1 लाख प्लस 0 1 लाख. यहाँ कुछ भी नहीं है स्टूडेंट्स, सो 3 शॉर्ट टर्म बोरिंग्स भी नहीं है, सो आउटर कॉलम 3 लाख. ये सब टोटल करेंगे तो सेम 12,20,000. ये वी हैव नथिंग, करंट इन्वेस्टमेंट ये सब कुछ नहीं है, सो विल गेट आउटर कॉलम में 4,20,000. अब टोटल कर लेते हैं. 12,40,000 प्लस 1 लाख प्लस 3 लाख. It comes to 16,40,000. Then 12,20,000 plus 4,20,000. Total will be 16,40,000. So this is the total of balance sheet. ये क्वेश्चन का सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है. कौन से टाइप का क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, जहां पे कितने शेयर्स बाय बैक करना है, हाउ मेनी शेयर्स टू बी बॉट बैक, इट इज स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन. तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, डायरेक्टली स्टार्ट विद जनरल एंट्रीज. सो आई स्टार्टेड विद द एंट्रीज, बट शेयर्स पार्टली पेड अप था, तो फर्स्ट वी रिकॉर्डेड मेक अ कॉल, रिसीव अ कॉल. देन वी हैड ड्रॉन दिस इक्वेशन, कितने शेयर्स बाय बैक कर रहे हैं, 60,000 इंटू 20%, बिकॉज इट इज स्टेटेड इन एडजस्टमेंट के 20% शेयर्स बाय बैक करना है. सो 12,000 इंटू 10 वी गॉट 1,20,000. फ्रेश इश्यू कौन सा कर रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर. सो प्रेफरेंस शेयर्स 1,200 शेयर्स एट पार. देन वी रिकॉर्ड द एंट्री फॉर फ्रेश इश्यू. देन बायबैक पार पे है कि प्रीमियम पे है कि डिस्काउंट पे, कुछ मेंशन नहीं किया है, दैट मींस बायबैक इज एट पार. देन दिस इज द एंट्री फॉर अमाउंट पेएबल. अमाउंट पेएबल मैंने प्रीमियम और डिस्काउंट नहीं लिखा है, बिकॉज बायबैक इज एट पार. दिस इज फॉर अमाउंट पेड. दिस इज अगेन एक्चुअली अ फ्रेश इश्यू ऑफ डिबेंचर. आप चाहें तो ये एंट्री यहां भी लिख सकते थे स्टूडेंट्स, अलाउड, पॉसिबल है. ओके, मैंने लास्ट में लिख दिया उसको. और ये 1 लाख यू कैन राइट इन दिस इक्वेशन. व्हाई आई डिडंट रिकॉर्ड इट, मुझे 120 की जरूरत थी. आई हैव अरेंज 120 फ्रॉम इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इटसेल्फ, सो आई डिडंट रिकॉर्ड इट डिबेंचर्स हियर. अगर आप डिबेंचर्स लिखते ना तो 1,20,000 और 1 लाख ऐड करते तो ये 220 हो जाता. तो स्टूडेंट्स सोचने लग जाते हैं अरे सर ने तो यहाँ इक्वल टू साइन डाला है, ये 220 है, ये 120 है. ये इक्वल टू साइन का मतलब क्या स्टूडेंट्स, इतना तो मिनिमम आपको कैसे भी अरेंज करना है, दैट इज द मीनिंग. इक्वल का मीनिंग डजंट नेसेसरली मीन्स कि दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेम होना चाहिए. हियर व्हाट डज इट मीन्स, जितना वैल्यू का आप शेयर्स बायबैक कर रहे हैं उतना कम से कम अरेंज करो. कहां से अरेंज करो, आइदर फ्रॉम फ्रेश इश्यू या अपने रिजर्व से. उससे ज्यादा आपने अरेंज कर लिया तो आपके लिए अच्छी बात है. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इक्वल टू डजंट नेसेसरली मीन्स ये दोनों सेम होना चाहिए. राइट हैंड साइड कैन बी ग्रेटर देन लेफ्ट हैंड साइड, पॉसिबल है. ये स्टूडेंट्स पॉसिबल है, ये कम नहीं हो सकता. दिस इज 1,20,000 और यहां दोनों का टोटल 1 लाख, दैट इज नॉट अलाउड. ओके, राइट हैंड साइड शुड बी कैन बी ग्रेटर देन लेफ्ट हैंड साइड. इट इज पॉसिबल. इक्वल भी हो सकता है या राइट हैंड साइड ग्रेटर भी हो सकता है, बट राइट हैंड साइड कैन नॉट बी लेस देन लेफ्ट हैंड साइड. लेस देन मतलब यहां 120, ये दोनों का टोटल 1 लाख, ऐसा पॉसिबल नहीं है स्टूडेंट. आगे समझ में. सो इक्वल टू डजंट नेसेसरली मीन्स के दोनों सेम होना चाहिए. इक्वल टू मतलब क्या, इतना तो कम से कम लाओ, जितना आपको रीपे करना है ना उतना तो कम से कम अरेंज करो, दैट इज द मीनिंग. उससे ज्यादा आपने अरेंज किया तो अच्छी बात है, कम किया तो दैट इज नॉट पॉसिबल. मुझे 1,20,000 किसी को पे करना है तो कहीं ना कहीं से 1,20,000 अरेंज करना पड़ेगा ना, कम थोड़ी चलेगा. जिसको मुझे 1,20,000 वापस करना है, आई हैव टू एनी हाउ गिव हिम 1,20,000. सो आइदर आई मस्ट ट्राई टू अरेंज मोर देन दैट, उससे लेस तो नहीं चलेगा. सो दैट इज द सिंपल मीनिंग. ओके, एंड देन वी हैड ड्रॉन बैलेंस शीट. बैलेंस शीट जैसे लास्ट चैप्टर में किया तो प्लस माइनस करके. ओल्ड बैलेंस शीट देखने का, लाइबिलिटी क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट किया तो ऐड, डेबिट किया तो माइनस. एसेट डेबिट बैलेंस, डेबिट किया तो ऐड, क्रेडिट किया तो माइनस. सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 1. बैलेंस शीट ऑफ सन लिमिटेड था. अच्छा स्टूडेंट्स, मैं हमेशा डेट डालना भूल जाता हूँ स्टूडेंट्स. बैलेंस शीट एज ऑन जो भी डेट होगा स्टूडेंट्स, इट वाज 31 मार्च. कितना है 31 मार्च 15. ओके, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1.
स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स। अगेन किस टाइप का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं? ऐसा क्वेश्चन जहां पे कितने शेयर्स बाय बैक करना है वो ऑलरेडी स्पेसिफाइड है स्टूडेंट्स, नो नीड टू वरी। उन्होंने स्पेसिफाई किया है कितने शेयर्स हमको बाय बैक करना है। Following is the balance sheet of Moon Limited as on 31st March 2013. Share capital 80,000 equity shares of 10 each, 4,000 preference shares of 100 each, profit and loss account, debentures and creditors, asset side पे fixed asset and bank balance. Company wants to buy back 20% of its equity capital at 10% premium. Not having sufficient profit to buy back, company issued 1200 preference shares of 100 each at 10% premium, payable as rupees 20 on application and balance on allotment. These shares were duly taken up by the company, purchased the equity shares taken up, and company purchased equity shares immediately. Sufficient profits were used to supplement the new issue. Pass journal entries and draw balance sheet. Again, the entries pass करना and balance sheet. किस टाइप का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स? Over here they have given us how many shares to be bought back. Okay, so first हम लोग start कर रहे हैं books of company का नाम क्या दिया है उन्होंने? Moon Limited. So journal of Moon Limited top पे लिख लेंगे. Start करते हैं. अभी स्टूडेंट्स अगेन इक्विटी शेयर्स मस्ट बी फुल्ली पेड अप. तो बैलेंस शीट देखो 80,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच. 80,000 इंटू 10 इज कितना? 8 लाख. मतलब शेयर्स क्या है? फुल्ली पेड अप है स्टूडेंट्स. तो अगर शेयर्स फुल्ली पेड अप है, वी डोंट रिक्वायर एंट्री नंबर 1 and 2. 1 and 2 क्या होता था? मेक अ कॉल एंड रिसीव अ कॉल. तो मेक अ कॉल रिसीव अ कॉल रिक्वायर्ड नहीं है तो उसको भूल जाओ, लेट इट बी, जाने दो उसको. Those two entries are recorded when equity shares are partly paid up. In this case, equity shares are fully paid up, so we don't require entry number 1 make a call and we don't require entry number 2 receive a call. उसको भूल जाओ स्टूडेंट्स. फिर उसके बाद स्टूडेंट्स ये एक बार डिसाइड कर लिया ना मेक अ कॉल एंड रिसीव अ कॉल, देन वी ड्रॉ दिस इक्वेशन. उसके बाद ये इक्वेशन बनाते थे स्टूडेंट्स हम लोग. ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग विथ मून लिमिटेड. पहले हमेशा क्या होता है स्टूडेंट्स? मेक अ कॉल रिसीव अ कॉल. ठीक है, हमेशा पहले हम लोग उसी से स्टार्ट करते हैं ना, मेक अ कॉल रिसीव अ कॉल से स्टूडेंट्स. सो मेक अ कॉल रिसीव अ कॉल नॉट रिक्वायर्ड इन दिस केस बिकॉज देखो इक्विटी शेयर्स क्या है आपका? फुल्ली पेड अप है. 80,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each. सो प्लीज इग्नोर मेक अ कॉल रिसीव अ कॉल. Those two entries are required when equity shares are partly paid up. तो यहाँ पे शेयर्स फुल्ली पेड अप हैं तो हमने मेक अ कॉल रिसीव अ कॉल इग्नोर किया. उसके बाद देन वी स्टार्ट विद दिस इक्वेशन. व्हाट इज द इक्वेशन? फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी बॉट बैक मस्ट बी इक्वल टू प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इश्यू एंड फ्री रिजर्व. फ्रेश इश्यू किसका होना चाहिए? या तो प्रेफरेंस शेयर्स का या डिबेंचर्स का. देन ओनली यू कैन रिकॉर्ड इट हियर. अगर फ्रेश इश्यू इक्विटी शेयर्स का दिया है तो यहाँ पे वो अमाउंट नहीं लिख सकते. वी कांट रिकॉर्ड इट हियर. Below the balance sheet, company wants to buy back 20% of equity capital. So 80,000 shares balance sheet में दिया, 80,000 number of shares. 20% करेंगे तो 16,000 आएगा. Then face value per share, it is given in balance sheet. 16,000 multiply by 10 करो. Sorry, 16,000 multiply by 10. You will get 1,60,000. So इतना आपको buy back rupees में करना है, 1,60,000. पैसा कहां से आएगा? या तो फ्रेश इश्यू से लाओ या आपका रिजर्व सेविंग्स यूज करो. अगेन बिलो द बैलेंस शीट, company wants to buy back 20% of equity capital at 10% premium. Not having sufficient profits to buy back, the company issued 1200 preference shares of 100 each at 10% premium. कितने शेयर इश्यू कर रहे हैं वो लोग स्टूडेंट्स? 1200 शेयर्स ऑफ कितना? 100 each at 10% premium. अगर किसी को याद नहीं है तो once again I will repeat. मैं फ्रेश इश्यू की बात कर रहा हूं, फ्रेश इश्यू की बात कर रहा हूं. इसका फेस वैल्यू शेयर का कितना है? प्रेफरेंस शेयर्स का 100 है. बिलो बैलेंस शीट देव से ना 1200 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 each. बट इश्यू प्राइस कितना है? इश्यू प्राइस एट 10% प्रीमियम. सो 10% प्रीमियम मतलब 110. या 110 कैसे आया? फेस वैल्यू 100 है प्लस 10% प्रीमियम किया, प्लस 10% प्रीमियम. फेस वैल्यू इज 100. ओके, मैं पेन से ही लिख देता हूं. फेस वैल्यू इज 100 प्लस 10% प्रीमियम किया तो वी गॉट 110. बट मैंने नोट्स में बताया था कि ऐसा केस में फेस वैल्यू 100 और इश्यू प्राइस 110 होता है तो प्रोसीड्स कितना माना जाता है? प्रोसीड्स कितना कंसिडर करेंगे हम लोग?
100 ही कंसिडर करेंगे. दैट मीन्स इसके लिए मैंने यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई किया. Although when the company issue shares, it will receive 110 from the shareholder. Shareholder से 110 ही आएगा स्टूडेंट्स. But when we draw the equation, in this case the term proceed means we must record only the face value. जो face value है उसी को लिखा मैंने. So 1200 into 100 करेंगे तो fresh issue will be 1,20,000. अभी स्टूडेंट्स मुझे चाहिए 1,60,000. फ्रेश इशू से आया 1,20,000, मतलब बाकी 40 कहां से लेना पड़ेगा? फ्री रिजर्व से. बैलेंस शीट में जाओ, एक ही फ्री रिजर्व दिया देखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और उसमें बैलेंस कितना है? 80,000 है. हमें जरूरत सिर्फ 40 की है, तो वो 80,000 में से हम इजीली हम 40,000 ले सकते हैं. सो आई हैव टेकन 40,000 फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. वंस अगेन 80,000 शेयर्स बैलेंस शीट में दिया है, 20% बायबैक करना है तो 16,000 शेयर्स. Face value per share is 10, so totally we have to buy back 1,60,000 worth value of equity shares. उसके लिए फ्रेश इश्यू उन्होंने दिया है, फ्रेश इश्यू इज ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. कितना शेयर्स? 1200. अब यहाँ पे स्टूडेंट्स कंफ्यूजन होगा कि 100 से मल्टीप्लाई करें कि 110. कंपनीज एक्ट में स्टूडेंट्स 100 ही लेना है यहाँ पे. ओके, face value 100, issue price 110, but proceeds for this equation should be considered at 100. So 1200 into 100 1,20,000. 160 की जरूरत है, 120 आ गया फ्रेश इश्यू से, तो बैलेंस 40 आई विल टेक फ्रॉम फ्री रिजर्व. एक ही फ्री रिजर्व बैलेंस शीट में दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैलेंस 80,000 है, तो 80 में से हम इजीली 40,000 यूज कर सकते हैं. So now equation done. Then we'll start once again with journal entry. पहले हम लोग क्या करते हैं, अगर शेयर्स पार्टली पेड अप है तो फर्स्ट रिकॉर्ड मेक अ कॉल, रिसीव अ कॉल, जैसे ये क्वेश्चन में किया था स्टूडेंट्स, मेक अ कॉल, रिसीव अ कॉल. देन वी स्टार्टेड विद द इक्वेशन. बट ये केस में शेयर्स आर ऑलरेडी फुल्ली पेड अप, मेक अ कॉल, रिसीव अ कॉल की जरूरत नहीं है, तो आई स्टार्टेड विद इक्वेशन. नाउ वंस अगेन एंट्रीज पे आ जाते हैं. तो मेक अ कॉल, रिसीव अ कॉल तो पिक्चर से बाहर हो गया, उसको भूल जाओ स्टूडेंट्स. अब इसके बाद क्या होगा? मेक अ कॉल, रिसीव कॉल के बाद नेक्स्ट होता था सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट. उसके लिए एडजस्टमेंट पढ़ो. 4 लाइन का तो पूरा एडजस्टमेंट है बिलो बैलेंस शीट. देखो वहां कोई सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट लिखा है क्या? फर्स्ट सेंटेंस में लिखा है कंपनी डिसाइडेड टू बाय बैक 20% इक्विटी कैपिटल. सेकंड लाइन में लिखा है कंपनी इश्यूड 1200 प्रेफरेंस शेयर्स. थर्ड लाइन में लिखा है दीज शेयर्स वर टेकन अप एंड कंपनी बॉट बैक इक्विटी शेयर्स. देयर इज नो सच एडजस्टमेंट एज सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट. कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी ने बेचा नहीं है, सो दैट एंट्री इज ऑल्सो नॉट रिक्वायर्ड. सो मेक अ कॉल पिक्चर से बाहर गया, रिसीव अ कॉल भी चला गया बाहर, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट भी बाहर चला गया. फोर्थ इज फ्रेश इश्यू. क्या फ्रेश इश्यू क्वेश्चन में दिया है? यस स्टूडेंट्स, अभी तो लिखा ना हमने फ्रेश इश्यू, वो आएगा यहाँ पे अभी उसकी जर्नल एंट्री. स्टूडेंट्स जर्नल एंट्री विल बी फ्रेश. नाउ स्टूडेंट्स अभी ध्यान से पढ़ो. देखो वहां पे प्रेफरेंस शेयर इश्यू करने की बात तो किया है, बट हाउ द मनी विल बी रिसीव्ड. Company issued 1,200 preference shares of 100 each at 10% premium, payable as 20 on application and balance on allotment. ये 100 रुपीज जो आपको है ना, ये प्रोसीड्स 100 रुपीज एक साथ नहीं मिलेगा स्टूडेंट्स आपको, ये आपको इंस्टॉलमेंट में मिलेगा. पहले आपको एप्लीकेशन के साथ में मिलेगा, और बाकी पैसा जो है ना, बाकी पैसा आपको किसके साथ में मिलेगा? अलॉटमेंट के साथ में. या आपने इश्यू ऑफ शेयर्स में सीखा होगा. सो एप्लीकेशन का एंट्री पहला रिकॉर्ड करना पड़ेगा. मेक अ कॉल, रिसीव अ कॉल आई इग्नोर्ड बिकॉज शेयर्स आर फुल्ली पेड अप. नेक्स्ट एंट्री होता है फ्रेश इश्यू. तो मैं फ्रेश इश्यू का ही एंट्री रिकॉर्ड कर रहा हूं, बट फ्रेश इश्यू कैसा है कि कुछ पैसा एप्लीकेशन में मिलेगा, कुछ अलॉटमेंट में, तो वी हैव टू रिकॉर्ड सेपरेट एंट्री जब भी ऐसा एडजस्टमेंट होगा. तो जनरल एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. कितना रुपीस हमको मिलने वाला है? 20 रुपीज होने का है. नंबर ऑफ शेयर्स कितना इश्यू हुआ? 1200. सो 1200 मल्टीप्लाई बाय 20, इट कम्स टू 24,000. 24,000. सो नरेशन विल बी बीन एप्लीकेशन मनी रिसीव. नोट्स में हमने ये एंट्री नहीं लिखी है. नोट्स में फ्रेश इश्यू की एक ही एंट्री है, क्यों नॉर्मली वो लोग वैसे ही पूछते हैं, बट यहां पे उन्होंने बोला है कि नहीं, फ्रेश इश्यू जो आप कर रहे हो ना, आपको पूरा 110 साथ में नहीं मिलेगा, 110 एक साथ में नहीं आएगा. 20 रुपीज आपको एप्लीकेशन के साथ में मिलेगा, और बैलेंस मतलब 90 रुपीज आपको अलॉटमेंट के साथ में मिलेगा. तो इसके लिए पहले मैंने एप्लीकेशन लिख लिया, अब अलॉटमेंट. फ्रेश इश्यू का ही दोनों एंट्री है. अच्छा, फिर इसके बाद स्टूडेंट्स क्या करते हैं?
प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, या आपने 12th स्टैंडर्ड में शायद आपको इश्यू ऑफ शेयर्स होता था वहां पे सीखा होगा, बट आई विल एक्सप्लेन, यहां पे भी मैं आपको बता दूंगा। प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। ये क्वेश्चन में बस यही पॉइंट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के, फ्रेश इश्यू का उन्होंने 2 एंट्री अलग अलग एप्लीकेशन अलॉटमेंट का पूछा है। अच्छा, ये आपने 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा स्टूडेंट्स, मैं पेंसिल से लिख रहा हूं फॉर द सिंपल रीजन, बाद में मैं उसको रब कर दूंगा आपको जस्ट बताने के लिए। जब इश्यू ऑफ शेयर्स आपने पढ़ा होगा ना स्टूडेंट्स, तो वहां पे ऐसा होगा एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, हो सकता है सेकेंड कॉल भी पढ़ा हो आपने, एंड देन फाइनल कॉल, या फर्स्ट कॉल के बाद डायरेक्टली फाइनल कॉल। टोटल फेस वैल्यू, जैसे एन एग्जांपल 100 है तो एप्लीकेशन में 20 मिला, फिर 30 मिला, 25 मिला, 10 मिला एंड 15, ऐसा आपने पढ़ा होगा स्टूडेंट्स कि जो 100 रुपीज है ना शेयर्स का, वो एक साथ नहीं मिल रहा है, डिफरेंट इंस्टॉलमेंट में आ रहा है, तो आप फिर सबका एंट्री अलग अलग रिकॉर्ड करते थे। इफ यू ट्राई टू रिकलेक्ट, हर इंस्टॉलमेंट का 2 एंट्री होता था स्टूडेंट्स, फॉर एवरी इंस्टॉलमेंट 2 एंट्री रिकॉर्ड करते थे। जितना इंस्टॉलमेंट है ना, हर इंस्टॉलमेंट का 2 एंट्री रिकॉर्ड करने का। सो दैट्स व्हाट आई हैव डन। एप्लीकेशन का 2 रिकॉर्ड किया, पहला एप्लीकेशन रिसीव्ड, देन एप्लीकेशन एडजस्टेड स्टूडेंट्स, ये कैपिटल में ट्रांसफर हो गया, इसको हम कहते हैं ट्रांसफर। में नरेशन लिखना भूल गया हूं, बीन एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। आपने शायद 12th स्टैंडर्ड में ऐसा पढ़ा होगा, अलॉटमेंट के लिए आस्क रिसीव्ड, फर्स्ट कॉल आस्क रिसीव्ड, सेकंड कॉल आस्क रिसीव्ड, फाइनल कॉल आस्क रिसीव्ड। बट एप्लीकेशन के लिए आपने रिवर्स पढ़ा होगा, रिसीव्ड एंड आस्क, ऐसा शायद आपको सर ने बताया होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। सो मैं उसको कहता हूं पहले रिसीव्ड एंड देन ट्रांसफर्ड। सो दे हैव सेड कि ठीक है आपने 110 में इश्यू किया है ना, बट आपको शेयर होल्डर्स वो 110 एक साथ नहीं देंगे, आपको डिफरेंट इंस्टॉलमेंट में देंगे। हमारे केस में स्टूडेंट्स ये टोटल वैल्यू ना 110 है, फॉर योर रेफरेंस आई एम राइटिंग, ये टोटल 110 है। ओके, एप्लीकेशन पे 20, बैलेंस ऑन अलॉटमेंट, सो बैलेंस मतलब 90। बट स्टूडेंट्स अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये 110 तो इश्यू प्राइस है, फेस वैल्यू तो 100 है ना। तो स्टूडेंट्स अलॉटमेंट में फिर कैसा लिखेंगे, यहां देखो प्रीमियम कितना एक्स्ट्रा, 100 का शेयर आप 110 में दे रहे हो, मतलब 10 रुपीज प्रीमियम है, 10 रुपीज प्रीमियम है, तो दिस शुड बी 80 अलॉटमेंट, 20 प्लस 80 100 और 10 रुपीज प्रीमियम माना जाएगा। टोटल फेस वैल्यू 100, 20 एप्लीकेशन में मिला, बैलेंस ऑन अलॉटमेंट, तो बैलेंस मतलब 80 होना चाहिए, बट यहां पे तो इश्यू प्राइस 110 है, सो वो 10 रुपीज एक्स्ट्रा क्या है, प्रीमियम। सो नाउ आई एम रिकॉर्डिंग एंट्री फॉर दैट, अलॉटमेंट का एंट्री रिकॉर्ड कर रहा हूं स्टूडेंट्स। यहां पे पहले अलॉटमेंट ट्रांसफर करते हैं, सो जनरल एंट्री विल बी प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ओके, कितने नंबर ऑफ शेयर्स हमने इश्यू किए, 1200। ओके, 1200 इश्यू किए स्टूडेंट्स। फेस वैल्यू अलॉटमेंट का कितना, 80, सो 1200 मल्टीप्लाई बाय 80, इट कम्स टू 96,000। सो कैपिटल के सामने तो 96,000 आएगा, बट एक्स्ट्रा 10 रुपीज प्रीमियम भी लिया है ना, सो दैट विल गो टू 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। 1200 शेयर्स है, मल्टीप्लाई 1200 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 10, इट कम्स टू 12,000। सो प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट कितना होगा, 1,08,000। आपके रेफरेंस के लिए मैं यहां लिख देता हूं, दिस इज 1200 इंटू 80, ये 80 फेस वैल्यू, कैपिटल अकाउंट हमेशा फेस वैल्यू पे होता है। एक्स्ट्रा 10 रुपीज जो हमने लिया, 1200 इंटू 10, सो टोटल 1,08,000। या 1,08,000 कैसे आया, 1200 इंटू 90, अलॉटमेंट टोटल 90 है, 80 प्लस 10, तो अलॉटमेंट के सामने 90 आएगा, बट फेस वैल्यू कैपिटल में जाएगा और एक्स्ट्रा 10 रुपीज प्रीमियम में जाएगा। सो नरेशन इसका होगा स्टूडेंट्स, बीन अलॉटमेंट मनी ड्यू, इसको आस्क भी बहुत लोग कहते हैं, बीन अलॉटमेंट मनी ड्यू। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद अलॉटमेंट रिसीव्ड लिखते हैं। सो जनरल एंट्री विल बी, पैसा मिल रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट
टू प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट। कितना ऊपर जितना डेबिट किया अलॉटमेंट 1,08,000 सेम 1,08,000 लिखने का स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ कोई कॉल्स इन एरियर्स वगैरह तो नहीं है इसके लिए। सो 1,08,000, सो आई विल से बीन allotment money received. Okay, so this was the important point, previous question में नहीं था। स्टूडेंट्स अगेन मेक अ कॉल रिसीव अ कॉल क्यों नहीं किया? फॉर द सिंपल रीजन वाई, बिकॉज शेयर्स आर फुल्ली पेड अप, इक्विटी शेयर्स फुल्ली पेड अप है, तो हमने मेक अ कॉल रिसीव इग्नोर किया, उसको पिक्चर से बाहर करो। नेक्स्ट है सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन में दिया नहीं है तो उसको भी बाहर कर दो। अब आया फ्रेश इश्यू। फ्रेश इश्यू है क्या? यस है, बट 100 का शेयर आपने 110 में दिया, सो 10 रुपया प्रीमियम लिया है। बट व्हाट दे से कि ये 110 आपको एक साथ नहीं मिलेगा, आपको शेयर होल्डर इंस्टॉलमेंट में देगा, तो मैंने वो यहाँ पे लिखा। अभी ये मैं कैंसिल कर रहा हूँ, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा था मैंने, ये 100 वाला एग्जाम्पल दिया था जैसे कि आपने ऐसा कभी पढ़ा होगा। तो हियर इन दिस केस देयर इज नो फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल। बोले क्या बोल रहे हैं? ठीक है आपको 110 तो मिलेगा, बट शेयर होल्डर एक साथ नहीं देगा, पहले 20 रुपीज देगा एप्लीकेशन में और बाकी जो 90 बचेगा आपको अलॉटमेंट में मिलेगा। तो कोई बात नहीं, 20 रुपीज एप्लीकेशन में, 90 रुपीज अलॉटमेंट में, बट 80 जाएगा फेस वैल्यू के अगेंस्ट में, दिस इज फेस वैल्यू, और 10 रुपीज कहां जाएगा? प्रीमियम के अगेंस्ट में स्टूडेंट। ओके, तो जब भी इंस्टॉलमेंट होते हैं, जितने भी इंस्टॉलमेंट है, हर इंस्टॉलमेंट का 2 एंट्री रिकॉर्ड करने का। सो आई स्टार्ट विद एप्लीकेशन। एप्लीकेशन पहले मनी हम लोग कलेक्ट करते हैं, बाद में उसको ट्रांसफर करते हैं। ओके, और अलॉटमेंट में हम क्या करते हैं? मनी ड्यू, पहले मांगते हैं उनसे, पहले मांगते हैं, बाद में हमें मिल जाता है। सो वी कॉल इट एज रिसीव, दिस इज रिसीव्ड। ओके, मैंने कैलकुलेशन भी यहां लिख दिया है स्टूडेंट्स। ये था, हाँ यहां मैंने नहीं लिखा, यहां लिख देता हूं मैं। दिस वॉज 1200 मल्टीप्लाई बाय 20। ओके, एंड यहां पे मैंने लिख दिया। सो दिस वॉज फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर स्टूडेंट्स। सो मेक अ कॉल रिसीव अ कॉल भूल जाओ। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट नॉट आस्क्ड, तो हमने भूल गए, उसको इग्नोर कर दिया। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स व्हाट? फ्रेश इश्यू, तो उसका मैंने 4 एंट्री रिकॉर्ड किया, 2 एप्लीकेशन का, 2 अलॉटमेंट का। फ्रेश इश्यू के बाद देन वी से, फिर देखते हैं हम लोग क्या आप कॉपी कर लेना स्टूडेंट्स कहीं भी, मैं इसको अभी रब कर रहा हूं। देन वी सी के बायबैक पार पे है, प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे। स्टूडेंट्स क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन किया है, कैसा है देखो क्वेश्चन पढ़ो। जस्ट बिलो द बैलेंस शीट, कंपनी वांट्स टू बाय बैक 20% ऑफ इक्विटी कैपिटल एट 10% प्रीमियम, एट 10% प्रीमियम। तो 10% बोला है ना, तो पहले तो उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। नो नीड टू वरी, करते हैं स्टूडेंट्स। मतलब बायबैक किस पे है, ये आपके रेफरेंस के लिए लिख रहा हूं मैं, एग्जाम में ऐसा लिखने की जरूरत नहीं। बायबैक इज एट प्रीमियम, सो आई मस्ट नो कितना प्रीमियम है वो। बड़ा आसान, कितना बायबैक कर रहे हैं? लेफ्ट हैंड साइड देखो इक्वेशन का, 1,60,000, 10% प्रीमियम, सो 10% किया तो अमाउंट आपको आ जाएगा 16,000। ओके, ये 1,60,000 ध्यान रखना आपके रेफरेंस के लिए, ऐसा मैं टिक मार्क करता हूं। दिस 1,60,000, ये 1,60,000 सेम है। तो आप कभी आप देखोगे ना तो आपको मालूम होना चाहिए 160 कहां से आया, ये और ये, ऐसा टिक मार्क कर दिया मैंने, सेम है। ओके, सो 16,000 आपको प्रीमियम देना है। देने के लिए आपके पास पैसे भी तो होने चाहिए स्टूडेंट्स, तो कैसे डिसाइड करते हैं? ये सब वर्किंग नोट है स्टूडेंट्स। क्या करने का स्टूडेंट्स? सिक्योरिटीज प्रीमियम पे ध्यान दो। सिक्योरिटीज प्रीमियम को पहला देखो, क्या बैलेंस शीट में सिक्योरिटीज प्रीमियम दिया है? बैलेंस शीट में जाओ स्टूडेंट्स, देखो सिक्योरिटीज प्रीमियम बैलेंस शीट में नहीं दिया, वो रिजर्व होता है ना सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो लाइबिलिटीज साइड देखो, रिजर्व मींस लाइबिलिटी, तो देखो नहीं दिया आपको, नहीं दिया है तो देखो मैं कैसा लिख रहा हूं उसको, रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम इज नॉट गिवन, तो बैलेंस शीट BS शॉर्ट में लिखा है, नील, बैलेंस शीट में नहीं है। प्लस फिर आपकी एंट्रीज में ढूंढो कहीं सिक्योरिटीज प्रीमियम है क्या, क्योंकि फ्रेश इश्यू में अक्सर आता है। देखो यहां आया है 12,000, सो मैं ऐसा शॉर्ट में लिख रहा हूं FI फ्रेश इश्यू, कितना आया 12,000। तो मुझे पे करना है 16,000, और ये ब्रैकेट मुझे क्या बताता है? ये बताता है अवेलेबल, मेरे पास है कितना अवेलेबल सिक्योरिटीज प्रीमियम। ओके, पे करना है मुझे 16,000, ये बताता है अवेलेबल कितना है, 0 + 12, मेरे पास 12 अवेलेबल है, पे करना है 16, तो कोई बात नहीं, 12 तो मैं इजीली पे कर सकता हूं, उतना तो मेरे पॉकेट में है अभी। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, मेरे प्रीमियम में उतना पैसा तो पड़ा है। आई कांट राइट 16, ठीक है मुझे पे 16 करना है, बट अभी अवेलेबल कितना है 12।
पे 16 करना है, 12 एडजस्ट हो गया, तो अभी भी बाकी कितना करना है स्टूडेंट्स 4। ये कहां से लाएंगे? एनी फ्री रिजर्व, विच फ्री रिजर्व इज गिवन इन द क्वेश्चन, रेफर बैलेंस शीट, आपको P&L अकाउंट दिया है। तो हमेशा पहले प्रीमियम कैलकुलेट करो, ये फेस वैल्यू को प्रीमियम परसेंटेज में दिया है तो मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट सर्टेन अमाउंट। फिर क्या करो, ऐसा ब्रैकेट में ना डिसाइड करो प्रीमियम आपके पास अवेलेबल कितना है। अवेलेबल मतलब बैलेंस शीट में देखो कितना है और फ्रेश इश्यू में कितना आया, दोनों को ऐड किया तो अवेलेबल इज 12, 0 + 12 इज 12,000। आई हैव टू पे 16, 12 अवेलेबल है तो पहले वो 12 पूरा यूज कर लो। सो 16 - 12, अभी भी 4 की जरूरत है, वो 4 कहां से लेना? एनी फ्री रिजर्व। तो विच फ्री रिजर्व इज गिवन टू अस इन बैलेंस शीट? प्रॉफिट एंड लॉस। सो सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू premium on buyback, to premium on buyback credit, amount will be 16,000. So this is the entry for premium on buyback. So make a call, receive a call, ignore किया because shares are fully paid up. Sale of investment नहीं पूछा है, नहीं रिकॉर्ड किया। हाँ, फ्रेश इश्यू दिया है बट 2 इंस्टॉलमेंट में था तो हर इंस्टॉलमेंट का 2 एंट्री रिकॉर्ड किया, सो टोटली 4 एंट्रीज आर रिकॉर्डेड फॉर फ्रेश इश्यू। दिस इज प्रीमियम ऑन बायबैक। देन नेक्स्ट होता है अमाउंट पेएबल। अमाउंट पेएबल कैसे करते हैं स्टूडेंट? जनरल एंट्री विल बी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। प्रीमियम पे बायबैक हो रहा है, ऊपर क्रेडिट किया था, अब डेबिट कर लो। प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। अभी ये सब अमाउंट्स कहां से आएंगे? बड़े आसान है स्टूडेंट। अगेन देखो, इक्विटी शेयर कैपिटल कहां से आएगा? ये 1,60,000 है ना, सेम 1,60,000 यहां पे कॉपी करना है। सो कॉपी ईयर 1,60,000। प्रीमियम कहां से आएगा? जस्ट फ्रॉम द प्रीवियस एंट्री 16,000। सो इक्विटी शेयर होल्डर्स टोटल कितना हो गया? 1,76,000। तो ये 160 कहां से आया? आपके रेफरेंस के लिए यहां पे स्टार मार्क, तो यहां भी मैंने स्टार मार्क किया। सो 1,60,000 का 2 जगह यूज हुआ, एक टिक मार्क इधर यूज किया, स्टार किया मार्क यहां पे यूज किया, और प्रीमियम ऑन बायबैक आपके रेफरेंस के लिए ओवर ईयर टोटल, फिर दोनों को इक्विटी शेयर होल्डर्स क्रेडिट। सो नरेशन विल बी मीन amount payable on buyback. Next is amount paid, वो तो सिंपल सी एंट्री होती है। इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अमाउंट इज 1,76,000। 1 लाख, ये सेम कॉपी किया, ये एंट्री में जो था ना वो सेम कॉपी किया है स्टूडेंट्स। ओके, आपके रेफरेंस के लिए, ऐसा एग्जाम में कुछ करना नहीं है। ओके, ये सेम मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया। 1,76,000। दिस इज अमाउंट पेड ऑन बायबैक, मीन अमाउंट पेड ऑन बायबैक। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अमाउंट पेड ऑन बायबैक के बाद हम लोग क्या अच्छा, मेक अ कॉल, रिसीव अ कॉल, इग्नोर किया बिकॉज शेयर्स वर फुल्ली पेड अप। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं पूछा, इग्नोर किया। फ्रेश इश्यू का 4 एंट्री। नेक्स्ट इज प्रीमियम ऑन बायबैक, अमाउंट पेएबल, अमाउंट पेड। देन लास्ट इज ट्रांसफर टू CRR, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। इक्वेशन देखो, क्या आपने फ्री रिजर्व से कुछ यूज किया है? यस, 40,000। कौन से अकाउंट से यूज किया है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। सो दिस अकाउंट शुड बी डेबिटेड, यही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो हियर आई विल राइट, लास्ट एंट्री है ये, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। 40,000 हमने यूज किया है, सो 40,000 यहां पे रिकॉर्ड किया। नरेशन विल बी बीन प्रॉफिट एंड लॉस यूटिलाइज्ड एंड ट्रांसफर्ड। या बहुत लोग लिखते हैं बीन कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्रिएटेड, चलेगा, वैसे भी लिख सकते हैं। सो दीज आर द एंट्रीज स्टूडेंट्स, ये एंट्रीज हुआ। अभी बैलेंस शीट बनानी है, स्टार्ट करते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के लिए अगेन पहला शेड्यूल बनाते हैं। ये स्पेस में शेड्यूल मेरा हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसके लिए मैं यहीं बना देता हूँ। नोट्स टू अकाउंट्स लिखते हैं हम लोग, हेडिंग नोट्स टू अकाउंट्स।
पहला हमेशा क्या होता है, शेयर कैपिटल। नेक्स्ट लिखते हैं ऑथराइज्ड, उसके बाद लिखते हैं इश्यूड, सब्सक्राइब्ड, पेड अप। फिर ओल्ड बैलेंस शीट देखो स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन में दिया है शेयर क्या, शेयर प्रेफरेंस शेयर तो यहाँ आ जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस एक ही है ना, तो रिजर्व्स अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। डिबेंचर भी एक ही है, क्रेडिटर भी एक ही है, फिक्स एसेट बैंक बैलेंस भी एक ही है, तो हमारा एक ही शेड्यूल में काम हो जाएगा। इसके लिए मैंने यहाँ पे बनाया, दूसरे पेज पे नहीं गया मैं। ओके, सो स्टार्ट विद द बैलेंस शीट विच इज गिवन टू अस इन द क्वेश्चन। लाइबिलिटी साइड से स्टार्ट करो। पहला क्या दिया है, इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना, 8 लाख। सॉरी, अब राइट फ्रॉम द फर्स्ट एंट्री स्टूडेंट्स, यहाँ है हमारी पहली एंट्री, यहां से स्टार्ट करो फर्स्ट एंट्री से, और स्टूडेंट्स लास्ट एंट्री तक चेक करना है हमको। ये सारी एंट्रीज चेक करनी है हमको। देखो इक्विटी शेयर कैपिटल कहाँ पे, इक्विटी शेयर कैपिटल, लाइबिलिटीज हैव क्रेडिट बैलेंस, वापस क्रेडिट किया तो 8, डेबिट किया तो माइनस। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। देखो फर्स्ट एंट्री में इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं है, सेकंड में भी नहीं, थर्ड में भी नहीं, फोर्थ में भी नहीं, फिफ्थ में है क्या, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे है नहीं, नहीं इधर इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट 1,60,000, डेबिट किया, लाइबिलिटी डेबिटेड मींस माइनस। सो 8 लाख बैलेंस शीट में दिया था, उसमें से 1,60,000 माइनस कर दो तो 640 बचा। फेस वैल्यू पर शेयर इज 10, सो नंबर ऑफ शेयर्स कितना होगा, 64,000। सो इश्यूड, सब्सक्राइब, पेड अप में आएगा स्टूडेंट्स 64,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10, अमाउंट 6,40,000। अगेन ओल्ड बैलेंस शीट में जाओ, नेक्स्ट प्रेफरेंस शेयर है, अमाउंट 4 लाख है, 4 लाख। अब प्रेफरेंस शेयर ढूंढो राइट फ्रॉम द फर्स्ट एंट्री टिल द लास्ट। प्रेफरेंस शेयर ढूंढ रहे हैं, ये प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन है, आई एम फाइंडिंग प्रेफरेंस शेयर कैपिटल स्टूडेंट्स। हाँ, सो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ये रहा, क्रेडिट किया, लाइबिलिटी क्रेडिटेड मतलब ऐड, सो 24,000 ऐड किया। देन और ढूंढो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, यहां पे स्टूडेंट्स 96,000 क्रेडिट किया, सो ऐड। आगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नॉट एप्लीकेशन अलॉटमेंट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं है, तो फाइनल आंसर ये आया 5,20,000। फेस वैल्यू पर प्रेफरेंस शेयर इज 100, सो नंबर ऑफ शेयर्स विल बी 5,200। सो 5,200 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100, 5,20,000. Here I recorded 5,20,000. 5,20,000. 5,200 preference shares of ₹100. 5,20,000. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, प्रेफरेंस शेयर के बाद वापस बैलेंस शीट में जाओ, वहां पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है 80,000। राइट फ्रॉम द फर्स्ट एंट्री टिल द लास्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ढूंढो। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ में तो नहीं, यहाँ भी नहीं है। देखो आपको लास्ट एंट्री में मिलेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, लाइबिलिटी डेबिट किया मतलब माइनस, सो माइनस करो 80,000 माइनस 40,000, नेट आंसर विल बी 40। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, रिजर्व्स होता है स्टूडेंट्स, सो विल रिकॉर्ड हियर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 40,000। 80,000 माइनस 40, आपके रेफरेंस के लिए मैंने लिख दिया 80 माइनस 40 विद डेबिटेड, सो 80 माइनस 40 इज 40,000। नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस के बाद डिबेंचर। स्टूडेंट्स डिबेंचर 1,60,000 ओल्ड बैलेंस शीट में है। राइट फ्रॉम द फर्स्ट एंट्री टिल द लास्ट आप ढूंढ लो, देखो आपको कहीं भी डिबेंचर नहीं मिलेगा। राइट फ्रॉम द फर्स्ट एंट्री टिल द लास्ट डिबेंचर नहीं है, सो यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के सामने that same amount which is given in balance sheet will copy here। कितना दिया है, 1,60,000। डिबेंचर के बाद क्या है, क्रेडिटर्स। अगेन राइट फ्रॉम द फर्स्ट एंट्री टिल द लास्ट आप देख लो, आपको कहीं भी क्रेडिटर्स नहीं मिलेगा स्टूडेंट्स। सो ट्रेड पेएबल्स, यहां पे हम लिखेंगे क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कितना दिया ओल्ड बैलेंस शीट में, 2 लाख। तो हमने ओल्ड बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड देख लिया। अब एसेट साइड देखो, फिक्स्ड एसेट। राइट फ्रॉम द फर्स्ट एंट्री टिल द लास्ट आप ढूंढ लो, कहीं भी आपको फिक्स्ड एसेट नहीं मिलेगा, तो आई विल कॉपी द सेम अमाउंट। फिक्स एसेट के सामने हम लोग लिख लेंगे 10,20,000। इसका हमने कोई शेड्यूल नहीं बनाया है क्योंकि ये एक ही आइटम है। हाँ, बैंक बैलेंस वी मस्ट बी केयरफुल क्योंकि बैंक बैलेंस है जनरल एंट्री में। बैंक बैलेंस कितना दिया है बैलेंस शीट में, 6,20,000। एसेट है, डेबिट किया तो ऐड, क्रेडिट किया तो माइनस। स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट एंट्री, डेबिट किया है 24,000, सो ऐड। ओके, यहां पे है कहीं बैंक, वापस डेबिट किया प्लस 1,08,000,
एसेट डेबिट किया तो 8, क्रेडिट किया तो माइनस। यहां है बैंक बैंक बैंक, क्रेडिट किया तो माइनस, माइनस 1,76,000। नो मोर बैंक, तो फाइनल आंसर बैंक आया 5,76,000। दिस विल गो टू कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 5,76,000। तो स्टूडेंट्स ओल्ड बैलेंस शीट असेट साइड भी हो गया। अब क्या करते हैं हम लोग, ऐसे ट्रांजैक्शन ढूंढो जहां पे क्रॉस मार्क नहीं है, जिसको कैंसिल नहीं किया है। प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट 24, प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन डेबिट 24, जीरो। क्रेडिट डेबिट सेम अमाउंट सेम अकाउंट, जीरो हो जाएगा। प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट 1,08,000 डेबिट, प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट 1,08,000 क्रेडिट, जीरो। इसको भी भूल जाओ। और क्या बचा, देखो ये सिक्योरिटीज प्रीमियम क्रेडिट 12,000, सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट 12,000, जीरो, भूल जाओ। अच्छा पीएनएल हो चुका है, नहीं पीएनएल मैंने सेम लिख दिया क्या स्टूडेंट्स, वेट वेट, हाँ पीएनएल में स्टूडेंट्स मैंने गड़बड़ कर दिया, आई एम सॉरी स्टूडेंट्स, वेट हाँ पीएनएल में मुझसे मिस्टेक हुई है, वेट स्टूडेंट्स प्लीज, आई एम सॉरी गलती हो गई यहाँ पे। पीएनएल बैलेंस शीट में 80,000 दिया था इन ओल्ड बैलेंस शीट, आई एम टॉकिंग अबाउट ओल्ड बैलेंस शीट 80,000। फिर हम लोग पीएनएल ढूंढते हैं राइट फ्रॉम द फर्स्ट एंट्री टिल द लास्ट, तो यहाँ पे तो पीएनएल नहीं है, यहाँ था, ये मैं माइनस करना भूल गया, -4, ये मैंने माइनस किया था 40,000, -40, दैट 4,000 एक्चुअली मैं भूल गया। तो आंसर इज 36,000। पीएनएल में ना बैलेंस आएगा 36, 40 नहीं है, -4,000 एंड -40,000। सो नेट आंसर विल बी, पीएनएल रिजर्व्स में आता है 36,000। ये मैं भूल गया था 4,000 माइनस करना। ओके सो अभी सारे ट्रांजैक्शन ये सब कैंसिल कैंसिल कैंसिल, पीएनएल भी कैंसिल। प्रीमियम ऑन बाय बैक क्रेडिट, प्रीमियम ऑन बाय बैक डेबिट, जीरो। इक्विटी शेयर होल्डर क्रेडिट 176, डेबिट 176, जीरो। अभी ये बचा कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व इज ऑल्सो रिजर्व इन सरप्लस, तो 40,000। या स्टूडेंट सबसे अच्छा रिजर्व्स में कितने आइटम हो गए, एक पीएनएल भी हो गया और एक सीआरआर भी ना, तो बेटर मेरे पास स्पेस है, आप लोग भी बना लेना। नोट नंबर 2, एक से ज्यादा आइटम होगा ना तो बेटर ड्रॉ द शेड्यूल स्टूडेंट्स, वो अच्छा रहता है। एक से ज्यादा आइटम है तो बेटर ड्रॉ शेड्यूल। तो स्टूडेंट्स मैं यहां लिख देता हूं शेड्यूल नंबर 2, रिजर्व सरप्लस। पहला पीएनएल आया था हमें 36,000 और कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व ये आएगा 40,000। सो टोटल हो जाएगा ये 76। ओके सो स्टूडेंट्स ऐसा अलग अलग लिखने से बेहतर, ये अच्छा प्रेजेंटेशन है, दिस इज नॉट द करेक्ट वे। इफ यू हैव मोर देन वन आइटम, रिजर्व्स में एक से ज्यादा हो गया ना, सो इसके लिए बेटर विल ड्रॉ द शेड्यूल, विल ड्रॉ द शेड्यूल। तो शेड्यूल में टोटल हमें आ जाएगा 76। ओके तो अभी देखो सारे ट्रांजैक्शंस कैंसिल हो गए, ये सीआरआर भी हमने कर लिया। पीएनएल में भूल गया था स्टूडेंट, तो मैंने माइनस करके आपको बताया, सीआरआर अभी कंसिडर। ओके सो नाउ ऑल ट्रांजैक्शंस आर कवर्ड। अभी शेड्यूल क्लोज करो, ये शेयर कैपिटल है, पहले इसका टोटल कर लो, 640 प्लस 520 विल बी 11,60,000 और रिजर्व्स का टोटल तो मैंने ऑलरेडी किया है 76। सो शेयर कैपिटल के सामने लिखेंगे 11,60,000। नोट नंबर 1 शेयर कैपिटल 1160, नोट नंबर 2 रिजर्व 76,000। आंसर्स करेक्ट है मेरे रिजर्व्स के, बट स्टूडेंट्स वो अच्छा प्रेजेंटेशन नहीं है। इफ यू हैव मोर देन वन आइटम अंडर एनी हेड, बेटर ड्रॉ शेड्यूल, तो उसके लिए बाद में मैंने शेड्यूल बना दिया। पीएनएल लिखा 36, सीआरआर लिखा 40, ये 40 यहां से आया था, और ये 36 कैसे आया था, 80 -4 -40। ओके सो आंसर्स रॉन्ग नहीं था, एक्चुअली मैंने यहां लिखा था, बट एक से ज्यादा आइटम है ये हेड में, तो उसका रिजर्व उसका शेड्यूल बना दिया मैंने। देन देर इज नो लॉन्ग टर्म प्रोविजन, तो ये तो ऐसे ही आउटर कॉलम में चला जाएगा। हियर देर इज नथिंग एल्स, तो ये पूरा आउटर कॉलम में आ जाएगा 2 लाख। 11,60,000 प्लस 76, 11,60,000 प्लस 76,000, 12,36,000 प्लस 160 प्लस 2 लाख, सो टोटल इज 15,96,000, 1596। यहाँ कुछ भी नहीं है, नॉन करंट ये सब नहीं है, सो 1020 प्लस 00 करेंगे तो 10,20,000। यहाँ पे नो करंट इन्वेस्टमेंट, नो इन्वेंट्रीज, नो अदर करंट एसेट, नो शॉर्ट टर्म लोन्स एडवांसेस, तो टोटल करेंगे तो 5,76,000 आएगा। सो 10,20,000 प्लस 5,76,000, टोटल इज 15,96,000। सो बैलेंस शीट टैली हो गई। इंपॉर्टेंट पॉइंट वॉज फ्रेश इश्यू दिया था, बट फ्रेश इश्यू का एक एंट्री नहीं है, हमने नोट्स में एक एंट्री लिखा है, बट ईयर दे हैव सेड आपको पैसा मिलेगा एप्लीकेशन और अलॉटमेंट में,
तो एप्लीकेशन का 2 एंट्री रिकॉर्ड किया और अलॉटमेंट का 2. दिस वाज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट. बाकी सारी एंट्रीज एज पर द नोट्स वही सेम है. ओके, दिस वाज द इंपॉर्टेंट पॉइंट. एप्लीकेशन का 2 एंट्री एंड अलॉटमेंट का 2 एंट्री. ओके, सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 2 था. ये सब जनरल एंट्रीज हैं and this is the balance sheet for this question. That's all. Thank you.